Raj Satpute sir. Today we have the honor of hearing from Dr. Raj Satpute sir, one of the youngest and most successful Ayurvedic practitioner in the world. Sir has done their MOH and DHA from UAE, and sir well known for his work in more than 55 countries. So without further delay, let's warm welcome Dr. Raj Satpute sir. I think sir का join नहीं हुआ है. Let me check. A warm welcome to sir. Okay. Am I audible? Hello. Yes, sir. Audible. So, namaste everyone, and thank you so much for joining in. I hope my audio and my video is pretty much clear. I hope. Okay. So, firstly, sincerest gratitude to the organizers for having me here. It's an honor to be a speaker at the closing ceremony of International Ayurveda Summit. So, it's my honor and pleasure to be here and share a couple of my experiences and my thoughts on how to practice Ayurveda internationally, A, and B, how to practice Ayurveda in the modern era. In the modern era where the patients are soon going to be like a robot with steroid dependency, with food dependency, with lifestyle dependency. How do you practice a divine science like Ayurveda, and how do you, bring them from darkness towards light through the world's first medicinal science, which is Ayurveda? So, again, the journey so far with International Ayurveda Summit has been really great. We've had some of the wonderful and senior speakers. I hope you've been enjoying the overall course, because back then when we were applying for the UAE exams and the MOH and DHA, there was nobody to guide us. And today we have a hand-holding support. Of course, all glories and all credits to the organizers for bringing such amazing speakers to guide us from A to Z. Because I think for me personally, it took me a year and a half or more than that to just understand one video of the entire course. So because of the speakers, and all glories to them, that they've been very kind enough to share, to bring the speakers on the panel, and the speakers very well explained about the overall process. So I hope you've been taking the juice out from the immense knowledge that you've been receiving. And of course, Hindi, Zarur. I feel English is common, but okay, we'll combine both of them. Okay. Sir, you can use both languages. Mix. Sure. Most of the participants prefer mixed language. Okay, sure. Mostly, I'm here in this session to hear from you. I'll be mostly looking forward for your questions related to Ayurveda and related to practice, how do you practice internationally. Nevertheless, we'll share a couple of points and then I'll be waiting to hear from you. Okay, so number one part, what I really want to say is, throughout the summit, I saw some common questions. The question was, is there a scope outside India or Ayurveda? Second, what is the what is the importance that other people have when it comes to Ayurveda? So to begin my session really with this question, it's very important for every student and doctor to know over here that Ayurveda is widely accepted in many of the countries, especially in a country like UAE. It is accepted as a medical system. Countries like the Oman, Bahrain, or countries like Malaysia, Saudi, and Singapore soon to join the list. These are countries where it is widely accepted as a medical system. Countries where Ayurveda is not accepted as a medical system, how do you bring your hands into that, and how do you really treat some of the serious patients? We'll come to that at the end of the session. But before that, let me tell you that it is accepted, okay? And there is a lot of scope. The science yields a lot of importance. We've seen that in today's time, there are so many advancements in the modern science. It's the AI-based robotic surgeries. It's the immense scope in the field of dermatology. It is the cases of infertility that has been so advanced. So Ayurveda doctor or student generally has a question, कि कैसे होगा? कैसे होगा? Is there anything that this old science can do? We always have this, a simple question. But let me tell you, I travel across the globe. We treat patients in over 55 plus countries. We have a team of 100 plus members. And we see across the globe, still, in spite of having the advance of the advanced treatment, patients across the globe today still choose Ayurveda
as the first choice of treatment. They still, know that nature is Ayurveda. Ayurveda is nature, and they all know that if we go against the nature, we have to face its consequences. With the growing time, हम कहीं ना कहीं nature से दूर जा रहे हैं. We are moving away from the nature, and so are its consequences. People have realized now in this time that pehle the age was 100 years, 110 years, 80, now 60, now bare minimum 50 years, right? We know the lifespan and how nature and Ayurveda, if we align both of this, it is not just preventive, but also curative. People have realized this worldwide. So a common Ayurveda student in their first year or a common doctor, as soon as they pass out, they have a question that is there a scope? Now at the OPD in Mumbai and UAE, we have people coming across the globe. They stay in for days and weeks just for one thing, which is classical Ayurveda practice. तो ये practice कैसे करें? ये practice कैसे करें? इसका phase पे I'll divide this phase into 2 points, and I will then wait for your precious questions and we'll answer them. Okay? I'll put it into 2 parts. Number 1 part is, for every student, every doctor, we always have a question that how do you treat patients internationally? Before that, my first question is that how do you train yourself overall is very, very important. Now, the thing is that in spite of so many advancements, an Ayurvedic practitioner has so many different ways of treating a disease. यानी एक वैद्य चिकित्सा करता है अग्नि के हिसाब से, बल के हिसाब से, कुछ वैद्य करते हैं नाड़ी अनुसार, कुछ वैद्य करते हैं गुरु नाड़ी के हिसाब से, कुछ वैद्य करते हैं काष्ठ औषधि यानी एकल द्रव्य अनुसार, कुछ वैद्य करते हैं रस औषधि द्वारा प्रैक्टिस करते हैं. Some practitioners are 90% through just panchakarma. So Ayurveda is one of the science, whether it is just योग, सत्ववरी चिकित्सा, दैव व्यप्रश्रय चिकित्सा, युक्ति पश्रय चिकित्सा, अलग अलग पद्धति की जो चिकित्सा इसमें का कोई भी एक पार्ट द्वारे आज वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस किया जा सकता है. एक कॉमन सा कहना है, जीव सृष्टी नष्ट झाली, जीव सृष्टी नष्ट झाली, माणसाची कुठेतरी वस्ती झाली. द मीनिंग इज कि अगर ये दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तो भी एक वैद्य में इतनी क्षमता है कि वो चांद पर भी जाके प्रैक्टिस कर सकता है. इतना इस शास्त्र में पोटेंशियल है, ऐसे हम हर रोज के प्रैक्टिस में देखते हैं, राइट? सो सब कुछ नष्ट है तो भी आदमी चांद पे जा सकता है. ही कैन प्रैक्टिस आयुर्वेद. Then why a patient cannot practice in a country like US or UK or where the herbs are not licensed, not approved? क्यों नहीं हो सकता, right? माने homeopathy and Ayurveda if we see in UAE 10x ज्यादा, 10 से ज्यादा x multiply products are licensed of homeopathy compared to Ayurveda. My point is, worldwide Ayurveda can be practiced by just one thing, is the Siddhant of Ayurveda. Hetuling Aushadhyam Swastha Ruparayanam. Mostly we see the students and the practitioners, before you go on the 6th floor, it's very important to strengthen your base. Learning. ये समझना हम भूल जाते हैं कई बार कि आयुर्वेद ये डायलॉग मेथड से लिखा गया है, उसे सीखा भी डायलॉग मेथड से ही जा सकता है. You can only learn Ayurveda through the dialogue method, through intensive practice, through learning the bits of it. नी पेन है और जानू बस्ती किया, मेरा सोराइसिस रक्तमोक्षण से ठीक होगा, ये कॉन्सेप्ट आज नहीं चलेगा, आगे भी नहीं चलेगा, because you're gonna have to deal with robots in the future. You're gonna have to deal with the robots. यानी 80 mg prednisolone के बाद भी लोगों के psoriasis भरे हैं. In this particular session, I will give you a glimpse of how do you get rid of these people if they don't take the 80 mg prednisolone for one day. How do you bring them out, right? The concept is how do you deal with steroid dependent robots in the future. आयुर्वेद द्वारे कैसे आप कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर व्याधि बल बढ़ रहा है, तो रोग, व्याधि बल के साथ औषध बल भी बढ़ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. व्याधि बल, रोगी बल, औषध बल, ये तीनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. आज अब अगर आप सिर्फ खदीरा रिस्ट जैसे दवा अगर सोराइसिस जैसे केसेस में इस्तेमाल करोगे तो हम बेर मिनिमम कुछ फायदा देखेंगे. तो हाउ डू यू रियली डील विद दिस पीपल, whether it is in India or whether it is internationally? हमें in the student part, in the first year, in the second year, as soon as possible, if you really have a goal कि हमें internationally का आगे का part देखना है, you want to really do something internationally, there are a couple of things that I would like to share, on which I would like to have your questions as well. Okay, so first thing what I believe is to have immense love towards Ayurveda. The one part is, if you really love someone, you want to know more about them. You really want to know more and more about them. So there's this one common thing that we see, that whether, I'll talk about myself for a minute, whether it is India or whether it is 50% of UAE, अगर कोई भी दवा
any of the company in Ayurveda or in the supplement world, whether it is protein world, supplement world, whether it is Ayurveda or supplement, name the company, name the be it classical, be it proprietary. I can tell you the shape, color, size, cost, in some cases, cost as well, the design of any medicine that you literally name. With the company, you tell me, इसका दूध पापेश्वर ऐसा है, इसकी कॉस्ट ये है. सो कहने का मीनिंग है कि प्यार होना बहुत इंपॉर्टेंट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप. हम बहुत दूर की सोच रहे हैं कि हमें जहां पर प्रैक्टिस करना है वहां पर, बट पहला पार्ट है कि आपका कितना रुचि है इसमें. सो आई टेल द स्टूडेंट्स ऑलवेज कि फर्स्ट क्रिएट लव फॉर द साइंस, फर्स्ट क्रिएट द लव एंड द साइंस इज अलाइव. ये एक जागरूक साइंस है, एक परिपूर्ण शास्त्र है, डिवाइन साइंस है. दिस साइंस स्पीक्स टू यू, दिस साइंस स्पीक्स टू योर विशेस, दिस साइंस स्पीक्स टू व्हाट यू रियली वांट, एंड इट रियली गिव्स यू, it really gives you what you really desire for. अगर हम विश्वास रखें आयुर्वेद पे, तो आयुर्वेद से हमें सब कुछ मिलता है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. That was my first point, is to create immense love towards the science. Second, important है जानना कि सीखा कैसे जा सकता है, डायलॉग मेथड से ही. So it's not something you see कि नी पेन ठीक हो गया जानू बस्ती से, तो I will do नी पेन. No, you're gonna have to deal with people जिन्होंने 50 जानू बस्ती करके भी आपके पास आए हैं, और वो पेशेंट ठीक नहीं होते, तो आपका विचार क्या होना चाहिए, आपका विचार क्या होना चाहिए. दिस शुड बी द मेन थिंग. और इसीलिए इफ यू रियली वांट टू प्रैक्टिस इन डिफरेंट कंट्रीज, द गोल इज काष्ठ औषधि, योगा आसन, होम रेमेडीज, पंचकर्मा, ऐसे पंचकर्मा विदाउट दवा के, सिंपल पंचकर्मा, वर्धमान औषधि, ऐसे घरेलू कौन सी दवाई है जो मैं वर्धमान मात्रा में दे सकता हूँ, ऐसे कौन से घरेलू उपचार है जिससे शोधन हो रहा है, जिससे शमन हो रहा है. You got to make a list of that according to Vata, Pitta and Kapha. You have to make a list according to Vata, Pitta and Kapha. जैसे सिंपल बोला है धन्य खीम, तो ये तो सिंपल बोला है, धन्य खीम है, गैरिक है, गुलकंद है. सो ये पित्तज विकारों के लिए बहुत अद्भुत काम करेगा, बट आपको बनाने वात, पित्त, कफ के अलग अलग चीजें. सो व्हेन वी टॉक टू पीपल इन Finland and in France and in other places, we see that we ask people, how do you deal, sir? How do you deal with these kinds of patients? So they always say that only with the patya as well, we see miraculous results in Ayurveda. So as a student, when you learn, when you're having intensive training, when you're studying, remember it is not just about davaiya, in a 360-degree way. वो एकल हो सकता है, पंचकर्म हो सकता है, वो योग आसन हो सकते हैं, वो होम रेमेडीज हो सकते हैं, because remember every disorder के आज आयुर्वेद भंडार है, it's huge. So you collect as many things, as many points that you can, and just give it to the patient. आपको आज लग रहा है कि एक दवा से एक व्याधि का शमन हो रहा है, बट मजा उसमें है जहां आप एक वही क्वालिटी, वही पोटेंसी के होम रेमेडी से भी वो व्याधि के बल को कम कर पाते हो, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल धान्य खीम के बारे में बताया कि मूत्र मार्ग द्वारा विष निकालने का काम है धान्य खीम का, राइट. धनिया का पानी अगर अभी पीते हैं तो मूत्र द्वारा विष निकलता है, तो वो विष कौन सा है, वो स्टेरॉइड डिपेंडेंट विष हो, वो सोराइसिस का विष हो, वो शारीरिक विष हो या मन का विष हो, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का विष हो या वो भाग दौड़ का विष हो, धान्य खीम उस विष को मूत्र मार्ग से निकालता है. ये शास्त्रकार हमें पूरी तरह से बताते हैं, राइट. दिस वाज अ स्मॉल एग्जांपल. अकॉर्डिंग टू वात, पित्त एंड कफ हमें इस तरीके का प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम ऑफ अ फर्म बिलीव कि चमत्कार को ही नमस्कार है, और चमत्कार के लिए हमें पंचकर्मा को ऐड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पंचकर्मा को आप आसान कैसे कर सकते हैं इन द मॉडर्न एरा, यू हैव टू रियली थिंक अबाउट दैट, कि आप आपके पेशेंट के लिए पंचकर्मा कैसे इजी कर सकते हैं. देयर आर सेवरल डिफरेंट मेथड्स. इफ यू रीड द क्लासिक्स क्लोजली, देयर आर सर्टेन पंचकर्मास दैट कैन बी डन एवरी डे, राइट. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्कोलियोसिस जैसे केसेस में, या लंबर स्पॉन्डिलोसिस के केसेस में, साइटिक के केसेस में हम देखते हैं कि डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोलैप्स की वजह से आने वाला जो टिंगलिंग सेंसेशन है, पेन है, ऐसे केसेस में हमें पता है कि पंचतिक्त शीर बस्ती से पेशेंट को फायदा होगा. सो हाउ डू यू रियली मेक दैट सेम पंचकर्मा इन अ फॉर्म ऑफ मात्रा बस्ती. सो हम जो भी इसमें कई बार क्या करते हैं, तो पंचतिक्त भरट, गुड़ुची भरट, वी हैव 2 टीस्पून इन 20 ml milk, 20 ml water, boil, make it half, strain like a शीरपा, स्ट्रेन करो, उसमें 2 चम्मच महातिक्त या अश्वगंधा, या आप रोगानुसार, if it is a nerve imbalance you go to Mahamash, if it is just you have to work on giving snigdhatva to the spinal cord, you go to Tikta Ghruta. So इस तरीके का 1 से 2 चम्मच घृत ऐड करके you make a 30 gram to 35 gram of medicine and you give it in the form of मात्रा बस्ती. हम यहाँ पर देखते हैं तिक्तशील बस्ती या मौसरस तिक्तशील बस्ती द्वारा 3 महीने करने से पेशेंट ने जो 30, 35, 40
कटी बस्ती, योग बस्ती से अलग अलग तरीके की जो बस्ती की है, अलग चिकित्सा की है, कायरोप्रैक्टर की है, अलग अलग तरह की एक्यूपंक्चर की है, ये केवल और केवल आयुर्वेद ट्रीटमेंट से सुधरते ऐसे हर रोज के प्रैक्टिस में हम देखते हैं. सो व्हेन यू ट्रीट अ पेशेंट, ऑब्जर्व केयरफुली कि उसको कौन सी चिकित्सा से फायदा हुआ, एंड हाउ कैन यू पॉसिबली मेक दैट ट्रीटमेंट easy for people. You know, today, right from anybody you know in the Colors TV, anybody you know in the cast, they come to us for their treatments. And remember, वमन पंचकर्मा एक ऐसा पंचकर्मा उनके लिए रहा है कि शूट छोड़ के या शूट के एक दिन पहले आते हैं, वमन करना है. कल बिग बॉस की एंट्री और आज कहते कि नहीं डॉक्टर मैंने परसों बहुत खाया था, मुझे पहले विरेचन दे. तो ये कैसे बनता है? आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज थिंक every day on how can you make Ayurved beautiful for people. आप आयुर्वेद को सुंदर कैसे बना सकते हो, इसके पीछे हमेशा लगना है, which is presentation. My whole point is presentation. आपके words, आपका presentation. I think एक इंटरनेशनल समिट में एक लेक्चर हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया एक प्रेजेंटेशन के पॉइंट को, कि पेशेंट के साथ हमारे मन में जो चीजें है वो पेशेंट को बोलना काफी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपके सामने एक किताब रखी है, उससे आपकी पढ़ाई नहीं होगी, बट उस किताब पे आपका मन कितना है उतना आपकी पढ़ाई होगी. सो पेशेंट को दवा देने से वो ट्रीटमेंट फॉलो करेगी, दिस इज नॉट गोना हैपन एट ऑल, बिकॉज वो पीड़ा में है, उन्होंने सब कुछ किया है, एंड देन दे कमिंग टू अस. यू गिविंग मेडिसिन, नो. इफ द व्हाई इज क्लियर, द हाउ बिकम्स इजी. सो पेशेंट को उसका व्हाई एक्सप्लेन करना. आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू रियली वांट टू प्रैक्टिस इंटरनेशनली, व्हाई हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर. व्हाई अगर क्लियर करते हो आप पेशेंट का, तो हाउ इजी बन जाता है. एंड यू गोटा एक्सप्लेन द व्हाई इन अ वेरी वेरी इजी एंड ब्यूटीफुल मैनर. ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे, है ना. तो प्रेजेंटेशन के पॉइंट पे मुझे बात करना है, हाउ डू यू रियली प्रेजेंट आयुर्वेदा ब्यूटीफुली इन फ्रंट ऑफ देम, मेकिंग इट कंफर्टेबल फॉर देम बाय एक्सप्लेनिंग हाउ इट रियली वर्क्स. हर एक दोष किस तरीके से शरीर में निकल रहा है बाहर, शोधन और शमन में डिफरेंसेस क्या है. कई बार हम देखते हैं लॉट ऑफ टाइम्स अक्रॉस द ग्लोब टुडे विल सी कि पेशेंट, ओके आई विल आस्क द क्वेश्चन ओवर हियर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, विरेचन के लिए कौन सा घृत इस्तेमाल करती है? Which grit do we use for विरेचन? स्नेहम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पंचतिक्त घृत. पंचतिक्त घृत, ये एक्सपेक्टेड था मुझे ना, पंचतिक्त घृत. अभी पंचतिक्त घृत से तो पित्त कम होने वाला है, और तो फिर गोल क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ विरेचन? द गोल ऑफ विरेचन इज टू इंक्रीज द पित्त एंड थ्रो इट आउट ऑफ द सिस्टम. तो पंचतिक्त से तो पित्त कम होगा, राइट? सो हम पंचतिक्त घी क्यों देते थे? क्योंकि क्यों मतलब वो तो पित्त को कम करेगा. द गोल इज, शोधन का गोल क्या है कि दीपन पाचन उष्ण तीक्ष्ण द्वारे, दवाई द्वारे अग्नि को बढ़ाना, पित्त को बढ़ाना, और बढ़े हुए पित्त को शरीर के बाहर निकालना. सो यहाँ पर तो हरिद्रा घृत इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पर तो पित्त प्रकोपित घी कौन से वो इस्तेमाल करने चाहिए. ऐसे दवा हम इस्तेमाल करेंगे पंचतिक्त या महातिक्त के, तो फिर कैसे होगा? और इसलिए मैक्सिमम केसेस जो ग्लोबली प्रैक्टिस किया जाता है कि पंचतिक्त घृत द्वारा विरेचन किया, विरेचन द्वारा पेशेंट्स को बहुत अच्छा लगा, उनको रोग निवारण लगा, इचिंग कम हुई, और 8 दिन और 15 दिन में उनका रिलैप्स हो गया. सो दीज आर कॉमन थिंग्स दैट विल एक्सपीरियंस कि 15 दिन हो गए विरेचन के दौरान बहुत अच्छा था. A lot of people say that सर मेरा ना वो विरेचन के पहले ही बहुत अच्छा हो गया घी पीने से. उधर ही अज्यूम कर लीजिए कि 10 दिन बाद आपको अच्छा प्लानिंग करना है और प्रॉपर दोष अनुसार चिकित्सा सूक्ष्म पद्धति से करनी है, नहीं तो रिलैप्स होना ही होना है. सो अगेन माय पॉइंट इज, ट्रीट केयरफुली, ट्रीट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट. हमें समझना है कि हम जो भी सिद्धांत अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हेतुलिंग औषध हमारे हैं, तो इसमें व्हाट इज इट दैट वी रियली वर्किंग ऑन. क्लैरिटी होना हमारे लिए, वाई क्लियर होना ही काफी इंपॉर्टेंट है, और रीजनिंग. और इसीलिए तो कहा है कि ये डायलॉग मेथड से ही सीखा जा सकता है, बिकॉज व्हेन यू लर्न इन अ डायलॉग मेथड यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड यू प्रैक्टिस सक्सेसफुली. ओके, सो दिस वाज अनदर पॉइंट कि प्रेजेंटेशन, कि पेशेंट का उस चिकित्सा में मन कितना है, आप पेशेंट को कितना उस जर्नी में जोड़ रहे हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज इफ यू आर प्रैक्टिसिंग सम कंट्रीज, आपके पास दवाई हो ही ऐसे कंपल्सरी नहीं है. यू हैव टू हैव सत्वभजी चिकित्सा, you have to have dietary changes, you have to have yoga asanas, you have to give certain meditation techniques. Like for example, we give a 21 days manifestation hearing music as well. Music therapy is an integral part of my treatment.
21 days का एक कोर्स होता है फॉर आवर पेशेंट्स व्हिच दे हैव टू लिसन every day before bed just for 15 minutes music. So आपको as a practitioner you got to make Ayurveda beautiful for people, right from music therapy to daily panchkarma at home. All these things are very very important. जैसे आज से 10 साल पहले जब शुरू किया we used to see that पोटली है. So पोटली हम बनाते थे और एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं. We made some formulations 10 years from now. We made a potli where that potli was वो इस्तेमाल किया जा सकता. आज ज़ंडू कंपनी ने बनाया 1 से 2 साल हम देख रहे हैं उसका लॉन्चिंग हुआ है और हजारों पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल कर रहे हैं. दिस इज एडवांसमेंट इन आयुर्वेदा व्हिच इज मेक द पेशेंट इजी ना उसको बार बार बनाना ना पड़े. इसी तरीके से आप त्वचा के पोटली है जैसे कई बार है दाग है स्किन के ऊपर. हाउ डू यू रिमूव दीज पैचेस दैट आर देयर ऑन योर स्किन. तो हम वर्ड्स को ही वापस नेम करते हैं. हाउ डू यू रिमूव यानी लेखन. पैचेस ऑन योर स्किन यानी मांस और मेद. तो लेखन या मेदोपाचक की दवा हमने लिए और उसका एक पोटली तैयार किया, पानी में लेके सेक दिया एंड वी सॉ कुछ ही दिनों में लोगों के पैचेस भी चले गए. तो ये हम जब सोचते हैं पेशेंट को भी बताना कि इस तरीके से सोच से हमने किया है तो पेशेंट की लेखनी ऑफ मेदोपाचक करके वो उनका जो पोटली है वो बनाएगा और वो हर रोज इस्तेमाल करके वो उस व्याधि से या उस दागों से क्लियर हो जाएगा. My point of telling you this is how you can make Ayurveda easy is something you need to know. आप कैसे करोगे इसके ऊपर थोड़ा brainstorming अगर आप करोगे. I can tell you thousands of ways now, but these are 3-4 methods where you can apply and make Ayurveda easy. I am of a firm belief that I learn from every failure. I learn from every failure and I learn it is in my mind. You name the person और उसका कैसे alternate करना है इसका complete planning. I've been a firm believer of. So similar is the case with you. जो भी failures आते हैं, जो भी ऐसे पार्ट आते हैं जहाँ पेशेंट कहता है कि नहीं आई डोंट लाइक द टेस्ट और किस तरीके से आपको फॉर्मुलेट करना. यू रियली हैव टू थिंक ऑन द माइन्यूटेस्ट ऑफ द माइन्यूटेस्ट चैप्टर बिकॉज एक पेशेंट आपको कहाँ तक लेके जाए यू कैन नेवर वंडर द पोटेंशियल ऑफ वन पेशेंट. So treat every patient effectively. Treat every patient like it's your own self. When I started off, I always considered patient in my own place. And if I was a patient, मुझे कैसे consulting मैं expect करता हूँ इस तरीके का consultation मैंने करना शुरू किया. So treat as if you are the patient. आयुर्वेद इज साइंस जहाँ पर एक करुणा भाव जो प्यार का भाव है जो एक पिटी फीलिंग है प्यार का जो फीलिंग है वो लगता है जरूर नहीं. इट रीचेस द पेशेंट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग. इनक्योरेबल डिजीजेस हो क्रोनिक डिसऑर्डर्स हो यहाँ पर मन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है. सो उभय इंद्रिय कहा है. सो मन की चिकित्सा करना. मन का स्थान हृदय में है तो ऐसा नहीं कि हृदय दवा या मन के दवा देने से ही पेशेंट को फायदा होगा. कई बार आपके हृदय से आने वाले शब्द भी पेशेंट के मन और हृदय को बदल सकते हैं. तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. कई बार कहते हैं ना बड़े डॉक्टर ने मुझे ठीक किया. तो बड़े डॉक्टर कौन है? तो बड़े डॉक्टर का शब्द यही इंपॉर्टेंट होता है. So this was some of the aspect, when I'll share some of the experience in UAE. Practice in UAE, of course, my initial few days were full of SLEs and pemphigus and severe atopic dermatitis. And again, atopic dermatitis, which is eczema and rheumatoid arthritis, is very, very common in UAE because of the dry nature, because of the sedentary lifestyle, because of the food habits. When I started off, I was wondering that कैसे होगा? Because यहाँ तो दिन ही रात को शुरू हो रहा है and 24 hours stores चालू है, 24 hours restaurants are on. How do you really practice a divine science like Ayurveda? Like how? It's not going to happen at first, we thought, but then with all faith on Lord Dhanvantri, we could see magical results with even the smallest of the smallest changes that patients could make. Remember, it is not that you need a perfect patient. You need to make the patient better than what he was yesterday. So ऐसा नहीं है कि वो रात का जागना बंद करे तो ही ठीक होगा. But if he gets better step by step and steadily, he is definitely going to get better. संक्षिप्त क्रिया योगी निदान परिवर्जन तो है, पर उस निदान को बेटर कैसे कर सकते इसके पीछे हमें लगना है. जैसे हमने ये देखा है कि वन ऑफ द पेशेंट जीत हमारे पास है सोराइसिस और ही ट्रैवल्स एवरी डे फ्रॉम अबू धाबी टू दुबई. तो हमने देखा ये अबू धाबी टू दुबई इज अ लॉन्ग जर्नी और इस लॉन्ग जर्नी में जब भी मतलब वीकली वंस उनका वर्क है, रेस्ट ऑफ द टाइम ही इज डूइंग इट वर्क फ्रॉम होम. तो जब भी ये
when you go to the office, उसके अगले दिन सोराइसिस बढ़ेगा, फिर अगेन when he's at home चीजें नॉर्मल हो जाएगी। आप भी आपके प्रैक्टिस में बहुत पेशेंट देखोगे त्वचा विकार की, तो ऑर्थोपेडिक केसेस में आप बहुत कॉमनली देखोगे पेशेंट वेकेशन पे गए या लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, तो वहां पर हेतु ये आहार ही नहीं होता, हेतु ये ट्रैवलिंग भी हो सकता है। ट्रैवलिंग की वजह से बढ़ने वाले दोष के लक्षण अगर आप देखोगे तो वो वात रक्त से सिमिलर है। तो उस वात रक्त की चिकित्सा के दवाइयां और उस वात रक्त के लिए हमने शुरू करने वाला गुद पिचू, तो हमने तेल और घृत का गुद पिचू शुरू किया और पेशेंट को कहा कि आप जब ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो कीप द गुड पिचू, गो टू दुबई, डू योर वर्क, एंड जब आप वापस आने वाले हो रिमूव दैट ओल्ड पिचू, कीप द न्यू पिचू, और आप सिर्फ वो गुद में आपका पिचू रखिए और आप सिर्फ दुबई से अबू धाबी आइएगा। एंड हमने देखा विद इन 2 weeks ऑफ एडवाइजिंग दिस वन स्मॉल टिप, पेशेंट टुडे इज एब्सोल्युटली नॉट। सो इस तरीके के युक्ति प्रमाण लॉजिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन से चीजों की वजह से कौन से दोष बढ़ रहे हैं, हाउ वी कैन मैनेज इट थ्रू आयुर्वेद। जैसे आज तक इक्थियोसिस वल्गैरिस व्हिच इज द केस ऑफ फिश स्किन, इक्थियोसिस व्हाट इज द लॉजिक, मुझे क्वेश्चन पूछा लॉजिक क्या है। ट्रैवलिंग करने की वजह से आने वाले लक्षण आप वात रक्त चिकित्सा में पढ़िएगा या वात रक्त के लक्षण पढ़िएगा और वात रक्त की क्या चिकित्सा है, इन पेशेंट को इस तरीके की चिकित्सा दीजिएगा और आपको आपका आंसर वहां पर मिल जाएगा इन डिटेल, है ना। सो देयर वाज आई द अदर पार्ट, ओके, very very important. Lastly, think on how you can make the long processes short for people. जो लंबे प्रोसेस है, जो कंप्लीट स्नेहन है, स्वेदन है, बस्ती है, आप किस तरीके से स्नेहन स्वेदन ऑन स्टमक एंड टमी एंड मात्रा बस्ती, आप किस तरीके से लंबे पंचकर्मों को पेशेंट के लिए हैसल फ्री और इजी कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू स्केल अप इंटरनेशनली। बिकॉज चमत्कार कोई नमस्कार है और आयुर्वेद से चमत्कार होते हैं, ये हर रोज देखते हैं, वेदर इट इज द पेशेंट ऑफ एनी नेशनलिटी। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस किए जाते हैं। जैसे नाइजीरिया है तो वो दे प्रैक्टिस योरुबा मेडिसिन, कई जगहों पे स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन दे प्रैक्टिस सेल्टिक मेडिसिन, जापान में हाइड्रोजन थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं, चाइनीज में TCM है, इंडिया में आयुर्वेद और सिद्ध है, कोरिया में कोरियन मेडिसिन और कोरियन हर्ब्स है। सो अलग अलग देशों में अलग अलग उनके ट्रेडिशनल मेडिसिन है। बट हम देखते हैं आयुर्वेद में इतना पोटेंशियल है, इट इज फर्स्ट साइंस फॉर श्योर फर्स्ट, बट डेफिनेटली आज आयुर्वेद को जगह रखना या अलाइव रखने में आज एक में वो किसी का योगदान है, तो वो योगदान वैद्यों से ज्यादा कहीं गुना ज्यादा पेशेंट्स का है, बिकॉज इट्स एक्सपीरियंशियल साइंस, राइट। ये एक एक्सपीरियंशियल साइंस है और आयुर्वेद ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, आयुर्वेद को आज जगह रखा है। सो आपको पेशेंट को एक एक्सपीरियंस देना है, यू गॉट टू गिव देम एन एक्सपीरियंस, एन एक्सपीरियंस दे वुड लव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। जो ग्रोथ आप 30 60 90 देते हैं, अगर वही ग्रोथ आप 1 2 3 4 देते हैं तो क्या कुछ नुकसान होगा? यू गॉट टू थिंक लॉजिकली, अगर वही ग्रोथ आप 10 ग्राम 20 ग्राम देते हो तो क्या कुछ नुकसान होगा? आपका उद्देश्य क्या है कि जब मैं स्टेरॉइड को विड्रॉ कर रहा हूँ दोष बढ़ रहे हैं, तो दोष बढ़ रहे तो मुझे क्या करना है वहां पर, तो मुझे दोषों को निकालना है। आप क्या कर रहे हो? दोष का शमन कर रहे हो और आपको लग रहा है आयुर्वेद से रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपको देखना है कि आप दोष को निकालोगे कैसे। तो आप गुरु जी का काम, सुबह 4 बजे उसको छानोगे, उसमें 2 चम्मच एरंड तेल डालोगे और सुबह 4 से 7 के बीच में उसको पीने को दोगे और गुड न्यूज मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो। सो कहने का दिस इज एन एग्जाम्पल, डोंट टेक दिस कंप्लीटली फॉर ऑल डिजीजेस, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। अगर स्टेरॉइड निकालने से दोष बढ़ रहे हैं तो कौन से दोष बढ़ रहे हैं कैसे पता चलेगा? डिपेंडिंग ऑन द लक्षण, एंड हाउ डू यू रियली रिमूव दैट दोष आउट ऑफ द सिस्टम is very very important and is the most useful thing required in the modern era, because you will be dealing with those patients who are on 4/4 sleeping pills, who are on 5/5 immunosuppressants and steroids and folic acids and folitrix in general. And today, if we see, we see around 50 people a day in the UAE, and that is out of that we experience that 80%, 75 to 80%, close to this ratio, is a person who is on इंजेक्टेबल इम्यूनोसप्रेसेंट। और ये इंजेक्टेबल इम्यूनोसप्रेसेंट हम देखते हैं अराउंड 10 12 20 22 तक पेशेंट्स लेते हैं। पहले 5 से 10 कुछ कंपनीज इंश्योरेंस में कवर करते हैं, बट नेवरदलेस one injection somewhere down the line costs around 110 rupees, 120 rupees, एक इंजेक्शन का ये कॉस्ट होता है। और हम ये हर रोज के प्रैक्टिस में देखते हैं डियर फ्रेंड्स, हर रोज जहां पेशेंट कहते हैं कि सर 15 के बाद आई जस्ट गिव अप,
बट 16वां के लिए मैं टाइम पे ना जाऊँ ना तो सब वापस आ जाते, तो मुझे लेना पड़ा 16। ऐसे करते करते आई एम ऑन 22 एंड नाउ आई एम कमिंग टू यू। आज वो पेशेंट कंप्लीटली एक भी बार स्टेरॉइड नहीं लिया, केवल और केवल आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा, और ये मुमकिन केवल आयुर्वेद द्वारा, ये मुझे ऐसे लगता है। आई एम ऑफ फर्म बिलीव दिस इज ओनली पॉसिबल विद आयुर्वेद। एंड अगेन द टाइम पीरियड इज फिनोमिनल, द टाइम पीरियड इज फिनोमिनल कि आप कितने जल्दी इन पेशेंट्स की डिपेंडेंट मेडिसिन को फ्री कर सकते हो। See, before you treat the disease, you got to make him free from the medicine to which he is dependent. और ये कैसे करे? तो ये करने के लिए पहले समझना है कि दवा विड्रॉ करने का कौन से दोष बढ़ रहे हैं, उसकी चिकित्सा करो, या शमन या शोधन द्वारे, और फिर टेपरिंग डोज में चल, व्हेन वी गो वी सी फिनोमिनल रिजल्ट। वी पुट अ कॉन्सेप्ट इन पेशेंट्स माइंड। हम कई बार कहते हैं कि ये एंटीहिस्टामाइन की 20 टैबलेट इज इक्वल टू 1 स्टेरॉइड। इस तरीके का इन्फ्रेंस आप पेशेंट को दे सकते हो और बता सकते हो कि व्हाट इज हेल्दी फॉर द पेशेंट, उनके लिए क्या हेल्दी है, एंड व्हाट्स द बेस्ट वे फॉर देम टू कम आउट फ्रॉम द स्टेरॉइड्स। So overall presentation, logic, explanation, following up, finding out what's difficult, asking your patient very sweetly, sir, what made you not? Patient अगर आते हैं, 1 महीने का गैप रहता है, I always first am the person, my team is a person, they will always ask, sir, be irregular. What made you? Like, नहीं sir, वो पाउडर का टाइमिंग, no worry, आपको बाद लेना था, you take it अपनी now, क्योंकि वो वात पे जाएगा, और वात की वजह से पित्त और कफ बिगड़ता है, तो आप बिफोर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, तो दिक्कत लगी मसी। एवरी पेशेंट इज इंपॉर्टेंट, एवरी पेशेंट इज इंपॉर्टेंट। और हमें करना है क्लासिकल ऑथेंटिक प्रैक्टिस, राइट? क्लासिकल, शास्त्र से हटके कुछ भी नहीं करना। तो हटके कुछ नहीं करने का मीनिंग क्या है कि हमें उसके सिद्धांत के हिसाब से सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। ऑफ कोर्स पहले ब्लैडर को इस्तेमाल करते थे बस्ती देने के लिए, आज हम ग्लिसरीन सिरिंज और बस्ती का पॉट इस्तेमाल करते हैं। तो एडवांसमेंट तो जरूर है, और उसके सिद्धांत बदलने नहीं चाहिए, मेरे कहने का मीनिंग ये है। तो जीव सृष्टि नष्ट झाली, माणसाची कुठेतरी वस्ती झाली, यानी चांद पर भी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, उनके और आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, इन सिद्धांत को लेके, और कंस्टेंटली काइजेन का जो फिलोसॉफी है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, तो पेशेंट को भी बेटर करना और खुद भी हर रोज बेटर होना, इन द वे ऑफ how our treatment can be easy for people and how we can get better by reading every day. Reading, कहीं अगर रिसर्च का पूछने वाले अगर कोई ज्यादा कोई लोग है तो आयुर्वेद डॉक्टर्स ही है, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही जो पूछते हैं रिसर्च। तो रिसर्च नहीं, रीडिंग की जरूरत है। ये मैंने कहीं सेशन में बताया कि वी ऑल नीड टू रीड एंड रीड सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। इफ वी रीड वी लर्न, and if you focus on learning there is no bound to it. Okay, so these were some of the aspects. Of course, I would be very much open to have your questions. Before that, I'll also like to say कि युक्ति प्रश्रय के बारे में हमने बात किया, पर सत्ववजय का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। अभी this September we were in South Korea and huge wellness festival. So we saw Yeongnam में there were around 100 of stalls, and उस सभी stall के अगर 80% treatment protocol हम देखें, तो those 80% were only and only like 80% का 100% was applicable on only Sattva-Vajay Chikitsa, but it was using certain instruments which made inference logic, which wherein patient believed and they followed the regime. So it was absolute 80% of the centers out there who came, ये Sattva-Vajay पे ही चल रहे। तो आज वर्ल्ड वाइड जो भी एडवांसमेंट्स हम देखते हैं, ये सबका कोर प्रिंसिपल आयुर्वेद ही रहा है, चाहे वो आध्यात्मिक पार्ट हो, चाहे वो चिकित्सा का पार्ट हो, चाहे वो मन का पार्ट हो, चाहे वो कोई भी पार्ट हो। These are small things picked up. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से 3 साल पहले एक अवार्ड मिला था एक व्यक्ति को ये बताने के लिए कि 15 दिन में एक बार फास्ट करे तो कैंसर इफेक्टिवली चला जाता है। तो हमारे शास्त्र में तो बताया हुआ है कि एकादशी का फास्ट करना है। So these are some small examples that I recollect because I haven't made a PDF. I'm talking just random and with an open heart with all of you. Right? Now discussing about, so my whole importance was understand the supremacy of Ayurveda and understand the core depth of the knowledge that it gives you and dive deep into it. And again, आप अगर किसी को सच में चाहते हो तो आपको उन्हें और जानना, you really want to know more about them. So know more about them by being really hungry about Ayurveda. I see some of the students that come in, they always say, "Sir, मुझे सीखना है, मैंने बहुत time waste किया." I really appreciate those, students and those doctors. And a lot of people, when I speak to them, I'm always in search. ये ऐसे चल रहा है, वो वैसे चल रहा है. So much Ayurveda is growing so much.
every doctor has a different perception. हर एक का एक अलग विचार है, हर एक का एक अलग तरीके का सोच है. हमें हर एक का अच्छा क्वालिटी लेना है, हर एक का अच्छा क्वालिटी, whether it's your colleague, whether it is your teacher, respect all, take good qualities from every single person, apply. Because as a practitioner we see कि अगर हम एक भी पेज ओपीडी के पहले पढ़े ना, तो उसे 10 पेशेंट का फायदा ही हो रहा है, 10 पेशेंट का मिनिमम फायदा हुआ है. And hence I am of a firm belief with discipline कि एक भी दिन में when I don't read Ayurveda, and एक भी दिन वो होगा नहीं जहां I will not read Ayurveda. So this is my firm belief. Rest is yours, what you can take from me. Okay. आगे का पार्ट, is there any point? Yeah, adjusting schedules of people. पेशेंट का अगर एक लाइफस्टाइल आप कैसे एडजस्ट करोगे? आप उसे मुहूर्त दवा नहीं दोगे, आप उसे बिटवीन दवा नहीं दोगे. हाउ कैन यू मेक इट इजी फॉर पीपल इज समथिंग यू कैन थिंक ऑफ. बड़े बड़े रूल्स जो है आप उसको सीधा कैसे कर सकते हो, पंचकर्मा को कैसे ऐड कर सकते हो. जैसे आई रिमेम्बर एक पेशेंट फ्रांसिस करके हमारे पहले दिन के ओपीडी में आया था यूए, और ये फ्रांसिस नाम के जो पेशेंट है, इन्होंने मुझे 3-4 आयुर्वेद और बहुत सारे अलग अलग, राइट फ्रॉम डाइटोर टू फिरोसमाइड से बोक्शूर, चंद्रप्रभा, सारी चीजें किए हुए दवाइयां इन्होंने मुझे बताया फॉर मूत्र विकार. तो इनका कहना था कि यूरिन जब भी आती है रुक रुक के आती है, बर्निंग होता है, बहुत पेन होता है, ड्यूरिंग भी होता है, बाद भी होता है. एंड आई वाज स्ट्रेंज दैट इतना सब कुछ चल रहा है तो फायदा तो होना चाहिए. तो नहीं फायदा हुआ था उनको. मन की भी चिकित्सा की गई थी, मन से भी पेशेंट बहुत पॉजिटिव थे. रिपोर्ट्स में यूएजी में उनका प्रोस्टेट आया था. सो ये सभी चीजों को मद्देनजर रख के दे फाइनली केम टू मी विद द सॉल्यूशन. सो ऑफ कोर्स आई हैव गॉट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट. हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, और चमत्कार कोई नमस्कार है. तो उस तरह मेरे साथ हमेशा धानवंतर तेल होता है. सो धानवंतर तेल हमने लिया, वहां पर 25 ml थोड़ा वार्म किया, उत्तर बस्ती फीडिंग ट्यूब द्वारा उसको रिलीव किया, रिलैक्स किया, और उसको उत्तर बस्ती हमने की धानवंतर तेल की. और धानवंतर तेल की एक ही उत्तर बस्ती में उसका महीने भर में कहना है कि पूरे महीने में आई फेस 0 डिफिकल्टीज. और उसको एक दवा हमने दी, वो है चंद्रप्रभा का वर्धमान, विच इज 181, 112233, उसका 8 से 1, उसके रोग बल और रोगी बल के अनुसार हमने उसको वर्धमान किया. और ये वर्धमान करके हमने पेशेंट का फीडबैक लिया, एंड पेशेंट वाज टोटली नॉर्मल. सो अगेन इट्स आर पॉइंट कि हम किस तरीके से व्याधि बल के अनुसार, रोगी बल के अनुसार औषध बल को भी बढ़ाए इन अ वेरी वेरी इनोवेटिव वे. द स्काई इज द लिमिट, वी रियली गॉट टू बी इंक्विजिटिव. और हमें सब कुछ सीखना है. अगेन आयुर्वेद में हर एक चीज के बारे में सीखना है. जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप ऐसे व्यक्ति होने के जिनमें हर एक जगह क्या चल रहा है, यू गॉट टू बी साउंड अबाउट इट, यू गॉट टू बी इंक्विजिटिव अबाउट इट. क्या आज पता है क्या एलोपैथी में ना स्किन को रिपेयर करने के लिए आज GFC करते हैं, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट इस्तेमाल करते हैं, आज AGF करते हैं. तो यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट एवरीथिंग, हाउ यू कैन अप्लाई दैट इन आयुर्वेद. कि मैं यही मेरे मेडिसिन में कैसे एडवांसमेंट कर सकता हूँ, मैं मेरी मेडिसिन में किस तरीके से चेंजेस कर सकता हूँ. सो यू रियली हैव टू बी ओपन एंड थॉटफुल. एंड डेफिनेटली आई रिमेम्बर वन ऑफ माई स्टूडेंट, आई शेयर दिस सिमिलर थिंग विद देम. एंड उन्होंने क्या किया, आई टेल यू. तो she started thinking a lot on this concept of good pichu, and we took a variety of patients, and हर एक पेशेंट के लिए हमने एक अलग अलग तरह के कुछ गुड पिचू तैयार किए. एंड अगेन वी सॉ कि केवल और केवल अन्य चिकित्सा सब सिमिलर है कि एक गुड पिचू द्वारा पेशेंट में काफी सारे चेंजेस, काफी सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस विद जस्ट हैविंग डिफरेंट गुड पिचूस. सिर्फ क्या है, ऑयल एप्लीकेशन और पीछू तैयार करना, नॉट जस्ट कॉटन. एक तैयार करना विद अ प्रॉपर कॉटन गॉज रैप्ड विद अ गुड डिजाइन व्हिच हैज अ गुड रिबन ऑन इट, व्हिच मेक्स द पेशेंट फील ओह वाओ दिस इज सो गुड. और उस तरीके से मेडिसिन डिप करके वहां पर रखना, इट रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. सो वर्किंग ऑन द स्मॉल थिंग्स, हाउ यू कैन मेक आयुर्वेद ब्यूटीफुल. और इसी से ही हम जो जेनजी है, जो मिलेनियल्स है, जो आजकल के बच्चे हैं, इनके हृदय में आयुर्वेद कैसे बसेगा, by making Ayurveda cool. Because बच्चों को तो cool चाहिए, right? Gen Zs को क्या चाहिए? They need cool stuff. वो cool कैसे बनेगा? वो we see over here ना, the coolest of the coolest. I don't want to name the person over here, but the coolest of the coolest on the Instagram. आज उनका कहना ये है कि I love the good picture, I love the woman, I love the बस्ती चिकित्सा. मुझे कड़वा दवा तो मुझे शुरुआत में लगा था ये क्या होगा, but I'm so much in love with the process of healing.
क्योंकि प्रोसेस ऑफ हीलिंग आपने कभी कल्पना नहीं दिया उनको कि प्रोसेस ऑफ हीलिंग क्या होता है, हाउ डू यू फील, व्हाट टू एक्सपेक्ट। जैसे आई नो एक समिट में एक सेशन था, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वैद्य मैम थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, यू हैव टू टेल योर पेशेंट्स व्हाट टू एक्सपेक्ट। ओके, सो चाहे वो इनक्योरेबल डिजीजेस हो, क्रोनिक डिसऑर्डर्स हो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, आयुर्वेद मेक्स पीपल बेटर। दिस इज वन थिंग। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा फेथ, आप कितना फेथ रखते हो और किस आस्था से, किस बिलीफ से दवा को प्रिस्क्राइब करते हो, आपकी चिकित्सा के ऊपर कितना प्रेम और कितना विश्वास है, ये रिजल्ट्स जरूर, दिस डिफाइंस द रिजल्ट। एंड देयर इज नो जूनियर, देयर इज नो सीनियर, देयर इज वन थिंग व्हिच इज आपका प्रेम आयुर्वेद पे कितना है, उससे रिजल्ट्स बनते हैं, उससे रिजल्ट्स दिखते हैं। अगेन आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल। अगेन कि अलग अलग कंट्रीज में आयुर्वेद ये एक्सेप्टेड है, जहाँ एक्सेप्टेड नहीं है वहां पर आप किस तरीके से आयुर्वेद ये वर्ड फ्रेम नहीं कर सकते, बट बिना फ्रेम किए भी एज अ काउंसिलर, एज अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम्स है, whether it is US, UK, वो MBBS डॉक्टर्स को MD बोलते हैं, there is no MBBS over there, there is MD, right? वहां पर 10+2 नहीं, वहां पर डायरेक्ट 12 है और 4 years का कोर्स है in the US, right? तो अलग अलग कंट्रीज हैव डिफरेंट रूल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से रूल्स के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और उसका कौन सा लाइसेंस है, हाउ कैन यू स्टडी, हाउ कैन यू ओपन अप। जैसे आई थिंक इन द लास्ट सेशन बहुत अच्छे तरीके से मैम ने हमें एक्सप्लेन किया पूरा प्रोसेस कि 7 एमिरेट्स है, 7 एमिरेट्स में आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? इट सो इजी और कितना आसानी से सब जॉट डाउन किया गया था। तो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट ये सब करने से पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इंटेंसिव प्रैक्टिस, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सीखना, खुद को आयुर्वेद के टुवर्ड झोंकना, कंप्लीट सरेंडरेंस इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, तो वो चीज हमसे दूर जरूर भागती है। तो खुश नसीब वो नहीं है जिन्हें पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, खुश वो एक रास्ता पता है कि ये रास्ता द्वारा ही हमें यहाँ पहुंचने वाले। सो हैविंग ट्रस्ट इन योर विजन, हैविंग ट्रस्ट इन योर एंड नॉट रनिंग बिहाइंड इट, बट ट्रीटिंग एवरी पेशेंट एज सेम एंड जस्ट मैनिफेस्टिंग कि दिस इज द विजन। ये सारी चीजें आई एम ऑफ अ फर्म बिलीफ and the things again follow. I'm very open once again to your questions. We'll take them one by one. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now you can ask your questions. Good afternoon, sir. Yes, yes, very good. Sir, Sorry? good evening, sir. Sorry. Please turn on your video. Thank you. You there? Sorry, sir, I'm not comfortable starting the video. Can I just ask the question? Sir, my question is, what about Ayurvedic medicinal farming? If you want to do that, Okay. Okay. which are Very the good question. drugs? Very, very good question. So, what is your question in Ayurved farming? What is your question basically? It's a wide spectrum. I can speak for 10 hours at least on Ayurved farming. तो आपका क्वेश्चन क्या है इसमें? Which are the basic drugs which can be used worldwide, out Again, of the country also? of course, very, very important. See, ekal dravya, simple dravyas can be easily available. जैसे शतावरी, शतावरी is a balya, वृक्ष, शीत, मधुर. आप बोलो उस शतावरी में सब कुछ है. आप त्वचा विकार भी शतावरी से कर सकते हैं, आप मूत्र विकार शतावरी से कर सकते हैं, आप गायनेक तो बोलना ही नहीं है, मन के विकार भी शतावरी से. आप क्या नहीं कर सकते, रुद्र से लेके सब कुछ शतावरी में. तो शतावरी इज वन, गोक्षुर इज वन, बहुत सारे हैं, द लिस्ट जस्ट गोज अनलिमिटेड. आप इनको फॉलो कर सकते हैं. माधव फार्म्स, डॉक्टर माधव गायकवाड़, अगर आप उन्हें पहचानते हो, वेरी यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर है. आयुर्वेद हमारे फैमिली के है, बहुत अच्छी फैमिली है, हमारे बहुत अच्छे आयुर्वेद के फैमिली के है, सर्कल के है, महाराष्ट्र. तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं. बहुत सारे इंस्पिरेशनल पर्सन है जिनसे आप सीख सकते हैं कौन से द्रव्य किस अनुसार लगाने हैं. बट वर्ल्ड वाइड दीज आर herbs that are accepted for sure. These are accepted. And अगर मुझे पता चले कि आप डॉक्टर नेहा राठौड़ आज ये वाली चीज अच्छा बना रहे, I'll be the first person to place an order with you, because we as Ayurvedic practitioners require authenticity.
So again, there are millions of Vaidyas that need authentic worldwide. So again, चाहे वो थ्रू लाइसेंसिंग मेथड हो, वर्ल्ड वाइड इट्स एक्सेप्टेड. हर कंट्री का एक अलग रूल है, बट आई थिंक गोक्षूर और त्रिफला और त्रिकटू और शतावरी, ये सारी चीजों में कोई देयर इज नो सेकंड थॉट. These are accepted. So you can choose the simple herbs and yes, you can get started. It's a very there's a very scope when it comes, very much a scope when it comes to Ayurveda. Thank you, sir. हेलो सर. हाँ. सर हम आयुर्वेदा के इसको ड्रग्स कैसे बोल सकते हैं सर? वो तो वनस्पति और तेल वगैरह वगैरह बोलते हैं. ड्रग्स तो एलोपैथी में आता ना. नहीं, मैं तो उनको मिसाइल बोलता हूँ कई बार, मैं तो मिसाइल बोलता हूँ. मैं तो महाकषाय के दौरान मैं पेशेंट्स को बताता हूँ, मैं आपको वर्णे के 10 मिसाइल दे रहा हूँ. नहीं सर, हम आयुर्वेद के कुछ भी देते ना, उसको ड्रग्स नहीं बोल सकते ना. नहीं, ये एक स्टाइल है, शास्त्रकारों का स्टाइल है. जैसे फॉर एग्जांपल वो भी बहुत कूल थे हमारे शास्त्रकार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. वो भी बहुत, मतलब उनका कहना क्या था पता है कि हस्ती दंत लगाने से हमारे पैर के तलवों को भी बाल आते, इतना पोटेंशियल है हस्ती दंत में. ऐसा शास्त्रकारों का कहना था. वो बहुत कूल थे. तो आप देखते हो क्या कि पैर के तलवों को लगा के भी बाल आ रहे? नहीं, बट इट वाज देयर लव टू शो कि हस्ती दंत से ये फायदा पेशेंट को हुआ है. तो वो बहुत कूल थे. आप उन्हें उनका आपको ये कभी भी इंटरप्रिटेशन नहीं करना. देखिए, हमेशा हमको ओपन रखना है. जो शास्त्र में बताए सही है, कभी भी जो बताए. वो ड्रग्स बोले, वो मिसाइल बोले, मैं तो मिसाइल बोलता हूँ यहाँ पे. इफ यू आस्क माय स्टूडेंट्स एंड माय टीम एंड माय पेशेंट, आई टेल देम मैं वर्णी के 10 मिसाइल आपको दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू 10 मिसाइल बिकॉज अगेन 10 मिसाइल और 1 मिसाइल इज इक्वल टू. आपने 50 महाकषाय बताए तो उनको 50 ड्रग्स बोलना है. मैं 50 मिसाइल बता रहा हूँ, आपको 50 औषधि बोलना है. बी ओपन. आपका क्वेश्चन क्या है कि शास्त्र में क्यों ड्रग्स लिखा है? इट इज रिटन, इट इज देयर ओन वे. इसके पीछे हम समय नहीं डालना. हमें समय किस पे डालना है कि हमें उसमें से क्या फायदा होगा, हमारे पेशेंट को क्या फायदा है. Is this question anyway going to help your patient or you in any way? The answer is no. Right? Correct? Yeah. Hello, So, sir. work and put every minute of yours in not questioning the text में negatively. पॉजिटिविटी डालो, अच्छा पार्ट उसमें से लो. Right? And learn from it. This is my advice to you. Hardik ji, अपना म्यूट करिए. This is my advice to you. I said make Ayurveda beautiful. How will you make it beautiful? Sir, I'm giving you 5 Varnya Dravyas of Ayurveda shots, Ayu shots. So, you make, when kahi baar I've got this review from the people around, I like how you use the certain words. Because you remember, exclusivity ko hi value hai. Right? Exclusivity. आज अगर आप एक जनरल प्रैक्टिशनर हो, आज अगर आप एक मूत्र विकार स्पेशलिस्ट हो, आप एक आयुर्वेद यूरोलॉजिस्ट हो, स्पेशलिटी. आई हैव अ नोन पर्सन इन शिरडी. आज उनका प्रैक्टिस है सिर्फ पोस्ट हिस्टेक्टोमी ओबेसिटी, पोस्ट प्रेगनेंसी ओबेसिटी. और आज चलने को भी या रुकने को भी वहां पर जगह नहीं, इतनी भीड़ वहां पर रहती है. तो मेरा कहने का मीनिंग क्या, एक्सक्लूसिविटी हैज वैल्यू. थिंक ऑन हाउ यू कैन बी एक्सक्लूसिव इन एवरी वे, in your writing style, in your pad, in your speech, in your presentation, in your panchakarma, in your thoughts, in your perception. यही आपको एक्सक्लूसिव करेगा. और ये इससे क्या होगा, मैं कहता हूँ ना कि पुराने जमाने में लोग ऐसे थे कि नहीं, मैं अगर रोड पे बैठूं तो भी मेरे पास पेशेंट की कमी नहीं, क्योंकि वो जमाना अलग था. आज का जमाना अलग है. प्रकृति चेंज ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन. So how you can constantly make परिवर्तन? I think this is my advice. How you can make multiple changes और इससे आपको फायदा होना ही. Hello. Hello, Sir. sir. Namaste. Hello. Hello. Sir, I have a question for you. Yeah, please. Yeah, please. पूछिए. हेलो सर. हाँ जी, पूछिए प्लीज. सर मेरा एक क्वेश्चन है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है. एक तो मतलब बहुत मेन बीमारी है डायबिटिक. हाँ. सर उसी से रिलेटेड एक मतलब बाद में जो लेटर टाइम में डेवलप होती है प्रॉब्लम, डायबिटिक रेटिनोपैथी. बराबर. तो सर उसमें जो मॉडर्न का उसका जो इलाज है उसमें भी कोई खास अभी डेवलपमेंट नहीं है. और उन लोगों ने एक इंजेक्शन भी तैयार किया, मतलब इंजेक्शन जो है एंटी VEGF लगाते हैं. तो फिर उसके लिए वो भी मतलब पूरा सफल नहीं कर पा रहे हैं. तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं आयुर्वेद?
बराबर, गुड, ओके, गुड क्वेश्चन। यहाँ पर वैद्य हार्दिक भी एक पूछ रहे थे, वी कैन टेक बोथ क्वेश्चंस टुगेदर। वैद्य हार्दिक, कहीं पे? Yes, sir, I am there. हाँ, पूछिए, यू आर आस्किंग। Sir, there is one of the most basic question. Whenever patient comes to us, they ask कि how many times is it going to take that, how many times it will take to get better. So it is very hard for me to answer this question. This is a very tricky question. So I tell them कि just 15 days का medicine लो. We will see what are the doshas, how you are responding with the medicine, and then I can tell you how long it will take to get better. So this is the question. If the patient is coming to you with the same question, how would you react in this condition? It's a wonderful question. Of course, I also deal with these same questions, and that's what I would love to answer. पहले इनका पहले का Okay, sir. Okay, sir. म्यूट कर लेगा। सो अगेन देखिए कैसा है, तो प्रमेय और प्रमेय का कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज एंड डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीजों पर अटैक हो रहा है ना, रेटिनोपैथी हो रहा है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, दिस 3 आर द कॉमन थिंग्स। तो अभी करंटली उनका क्या पोजीशन है ये समझना पहले, तो वो रेटिनोपैथी क्यों हुआ है। ओके, सिर्फ डायबिटीज की वजह से ही हुआ है या देयर आर अदर फैक्टर्स दैट आर आल्सो रिस्पांसिबल हियर। ये सभी चीजों को देख के there is no single there is no one संप्राप्ति for or one औषध when it comes to retinopathy in general। यहाँ पर बहुत एक्यूरेसी का पार्ट आता है, वित्त कर्म का भी, और how we can remove the tension that is being built up, वो भी एक पार्ट आता है। Here we need a overall case taking। यहाँ पर सिर्फ हम एक ऐसा नहीं देख सकते रेटिनोपैथी है तो ये तरह का दवा इस तरीके से इस्तेमाल करना है, या आंखें पित्त से बनी है, मज्जा से बनी है तो इस तरीके का प्रोटोकॉल। कहीं फेलियर्स आज एलोपैथी के इंजेक्शन के भी है, राइट, लॉट ऑफ फेलियर्स वी डू एक्सपीरियंस। तो वो फेलियर्स की ट्रीटमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं, और पेशेंट को किस तरीके से आप एक प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये चीजें हैं, ये इसके इफ्स एंड बट्स है, एंड हाउ वी इन आयुर्वेदा ट्रीट द डिजीज। तो प्रमेय का आया हुआ इम्पैक्ट आंखों के ऊपर, तो इट्स अ प्रोसेस, किस तरीके से ये डिजेनरेट हुआ है, आया हुआ प्रोसेस क्या है, ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने के बाद पेशेंट का कितना एक्सेप्टेंस है। कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कैटरैक्ट ग्लाकोमा के बारे में अगर बात करें, रेटिनोपैथी के बारे में बात करें, तो पेशेंट ऑलवेज रेडी कि नहीं मुझे ऑपरेट ही करना है। नेवरदलेस आप केवल विद कर्मा से भी कैटरैक्ट में चेंजेस देखते हो, अगर आप एक्यूरेसी से वो विद कर्मा करोगे तो इन जस्ट 7 डेज पीरियड, हर 2-2 दिन में करो तो। बट अगेन पेशेंट कितना ओपन है ये भी हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। Overall, there is a very good treatment, but again, it's a long topic on how we can, treat retinopathy. That's one part, okay. पर सबसे पहले चिकित्सा तो हमें क्लेर की ही करनी है, प्रमेय का ही करनी है, मेद की करनी है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। Yes, हार्दिक जी का क्वेश्चन आता है, तो this is the most common question, and there is of course the most important question in the modern era कि हमेशा पेशेंट का कहना है कि how long it will take। So in today's time, we see that law, as per law, you need to have proper safety, because दो चीजें हैं जो मेडिकल सिस्टम में नहीं सिखाए जाते, दो सिस्टम, पहला है फाइनेंस एंड सेकंड इज लॉ। और आई फील कि ये दो चीजें आयुर्वेद से बहुत दूर है, जिसके बारे में हमें सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ, एंड उसको मद्देनजर रख के हमारे कंसल्टिंग में भी वो वो सौम्यता, वो सूक्ष्मता, वो प्यार होना चाहिए। सो हम नहीं किसी को, मतलब कई बार मैं देखता हूँ कि कैंसर के पेशेंट्स हमसे नहीं सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। आई विल टेल यू, where I practice, next to that there is a clinic, and I recently heard in the last month, this is the open, just a random sharing, तो वहां पर उन पेशेंट ने डॉक्टर के ऊपर ऑफकोर्स एक फाइल केस किया, जस्ट एक ही सेंटेंस के लिए कि ये डॉक्टर ने मुझे बताया कि सब कुछ ठीक है, आप नहीं, सब कुछ ठीक है नहीं, डॉक्टर ने बताया चिंता मत करो ठीक हो जाएगा, आई एम देयर, चिंता मत करो ठीक हो जाएगा, आई एम देयर। ये भी नहीं बताया कि सब ठीक हो जाएगा या सब ठीक है, इतना ही बोला चिंता मत करो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और दूसरे डॉक्टर ने सिर्फ यही बताया व्हेन दे टेक अनदर ओपिनियन कि ऐसी चिंता ना करे, दिस इज सच अ सीरियस प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो इस सेंटेंस पे आज द person have to pay certain amount, which is huge. On which word? The word is चिंता मत करो। तो
you also have to understand about the legal aspect, whether you're, especially when you're treating patients internationally. ये बहुत बारीकी से हमें Hello. ध्यान रखना है, right? But sir, couple of minutes back, you were talking about the manasik causes of the disease. If the patient is coming to us that has taken he has tried already different pathies, but in this condition, he is already suffering mentally. So in this condition, like you told us couple of minutes back, that you have to just tell that patient ki, चिंता मत करो, we'll take care of each and everything, just to calm his mind down. Of course, but कौन से पेशेंट के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, और उसका चिंता मत करो ये जब बोलते हो आप, उस व्याधि की सीवियरिटी बताना उनको इम्पोर्टेंट है. So instead of using this word चिंता मत करो, what can I say? Of course. Instead of using चिंता मत करो, what you can do is keep the picture in front of them. Sir, this is the problem, you've been having it in so and so problem, so and so years. These are the set of medicines that you have really taken. I am here to educate you कि आप ये दवा बंद करोगे तो इस तरीके का प्रॉब्लम होगा. Currently you're coming to me with these kinds of solution. As a Vaidya, with all faith on Lord Dhanvantri, with all faith on the numerous patients that we've been doing, मेरे एक्सपीरियंस में मैं आपके जैसे पेशेंट हर रोज देखता हूँ, एंड मैं पक्का आपको ये चीज कहता हूँ कि इतने पेशेंट्स में हमने एक एवरेज देखा है कि ये 7 दिन में रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं. और मेरे चिकित्सा का एक उद्देश्य है कि मैं हर 7 दिन में ये पूरा प्रयास करूं जो मेरे पेशेंट कहते हैं कि यस, विच इज मोर देन 90%, जहां पर उनका कहना है कि सर एवरी 7 days वी हैव इम्प्रूव्ड इन द कंडीशन. नाउ इफ यू डू नॉट स्लीप एट नाइट, इफ यू डू सो एंड सो, मेरी एक अपथ्य का जो कागज है आपका, ये आप एटलीस्ट 50% फॉलो करिएगा, और हम मिलेंगे एक 15 दिन में, और हम एम रखेंगे मिलके एक साथ कि 15 दिन में आप इंप्रूव करो. ओके, आप चिंता मत करो, ऐसा उनको इनिशियली बोलना है, बट आप चिंता मत करो, हमको एक साथ यहाँ पर काम करना है. नाउ दैट वाज एन आई केस, वो अलग केस है, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया आपको, वो आंखों का केस है. ओके, दैट वाज अ आई केस जहां पर अलग ओपिनियन लिया एट वेरी डेंजरस कंट्री लाइक यूएई, जहां पर यूएई इज वन ऑफ दोस कंट्री व्हिच इज द मैक्सिमम ऑफ रूल्स. सबसे मैक्सिमम रूल कोई कंट्री में है तो वो है यूएई, मैक्सिमम, है ना. और बहुत एक्सपीरियंस लोग वहां पर आते हैं, क्योंकि द मैक्सिमम नेशनलिटीज एंड वर्सिटैलिटी ऑफ कल्चर यू फाइंड इज ओनली यूएई. तो कहने का मीनिंग क्या है कि चिंता मत करो, ये आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू द डिजीज की वो कौन सा है. वो तो केस आंखों का है ना. अगेन व्हाट आई डू फॉर सच पीपल, आई टेल यू व्हाट आई डू इज टुगेदरनेस. आई ब्रिंग अबाउट टुगेदरनेस कि हमें एक साथ इसको काम करना है, एक साथ इसके ऊपर काम करना है. टुगेदर वी नीड टू फाइट दिस. एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई एम श्योर दैट आप 256 लोग इसमें से लोग हैं, तो वो क्या है, तो मिनिमम महीने में एक बार हमारे सारे कैटेगरी वाइज पेशेंट्स आते हैं और हम वहां पर चर्चे करते हैं. मैक्सिमम पेशेंट्स दे कम इन, दे जॉइन इन विद अस, एंड वी जस्ट हैव टॉक्स ऑन आयुर्वेद विद देम. So do you really have that much of dedication to your love, which is Ayurveda? तो महीने में एक बार everybody comes, and हम सब बताते हैं पेशेंट्स के साथ कि आप ये करिए, आप वो करिए. I personally come, my doctors come in. तो पहले सेशन हमारे डॉक्टर्स लेते हैं, तो मन के बारे में लेते हैं, योग के बारे में लेते हैं, पथ्य के बारे में लेते हैं, अपथ्य के बारे में लेते हैं. We do it very very often, but I'm telling you once a month. उनको आप बोल भी सकते हैं, आप महीने में एक बार हमारे मीटिंग्स में ज्वाइन करिएगा ताकि आप आयुर्वेद हमारे साथ सीखो. और आई एम श्योर कि 50% प्लस पेशेंट्स ज्वाइन करते हैं, बिकॉज उनको सीखना है. और वो पूरे प्रोसेस में ना, वो पूरे प्रोसेस में अगर 100% है तो एटलीस्ट 50 पेशेंट ज्वाइन करते ही. तो अगर 100% का सेशन है तो उनको 10 पॉइंट तो मिनिमम मिलते ही उससे. और हमने ये एक पार्ट देखा जो मैं आपको एक बहुत गोल्डन टिप देना चाहता हूँ, गोल्डन टिप यहाँ पर, कि हमने देखा है कि हमारी ओपीडीज के पेशेंट्स बहुत हद तक बढ़े when we started doing this. I'm sharing it very openly, a very very secret part, जो आप ऐड कर सकते हो. OPDs हमारी बड़े when we try to bring in patients in one platform and educate them, because आज आयुर्वेद के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं. आयुर्वेद स्टूडेंट और आयुर्वेद डॉक्टर्स के सामने आयुर्वेद इज ग्रेट बोल के तो काम होगा, बट आयुर्वेद के पेशेंट्स या नॉन आयुर्वेद पेशेंट के सामने आयुर्वेद ग्रेट है ये बोलने में बात है. राइट. Again, coming to your question, I hope I am able to satisfy your question. There's a long yes sir, definitely. But sir, another question is, if in 7 days I'm not getting results with my medicine, so how can I improve? Because patient is expecting that I'll get result in 7 days.
माय डियर यू टेल मी अ केस ना, मुझे एक केस दिलो ना, कोई भी एक एग्जांपल लो, ऐसा रेटिनोपैथी वाला मत लो, कोई तो ऐसा कोई भी तीव्र से तीव्र केस ले लो। चल एक का Sir, वर्ड recently chikungunya case is rising. So couple of weeks back, one patient came to me. He was telling कि पूरा joint दुखता रहता है. I don't know what to do. I am tired of taking medicines since long time. He's been taking medicines for about past 1 month. So I gave him medicines for 15 days, but he got result for 10 to 15%. But he told me that it is not as effective as it should be. So I was a little bit worried. राइट, इंपॉर्टेंट यहाँ पर तो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है ये किस तरीके का हड्डी ताप है, अस्थियों में गया हुआ ज्वर किस तरीके का है, ये पेशेंट को वहां पर बताना कि ये अभी आपका जो बुखार है ये हड्डियों में गया है। आपको कहीं ना कहीं जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है इससे आराम तो मिलेगा, पर हड्डियों या जोड़ों में के ज्वर को बुखार को जब हम कम नहीं करेंगे तब आगे जाकर आपको बड़ा व्याधि ना हो। और Hello, sir. I even asked him to be on that उपवास पे भी रखा 7 days के लिए, लंघनम स्वेदनम कालो यवाग्वस्तिक्ते कोरस। तो मैंने पहला ही जो फॉलो किया लंघन करने के 7 days में ही गॉट रिजल्ट, ऑन दैट केस ओनली 15% रिजल्ट। सो अभी ही स्टिल ऑन मेडिकेशन। थैंक यू सर, कंटिन्यू। वही पार्ट है ना कि फर्स्ट डोज में आपको उनको फर्स्ट कंसल्टिंग में उनको क्लैरिटी देना कि हाउ विल गो स्टेप बाय स्टेप। और आपने चिकित्सा में वहां पर चंपकादि पिंपली इस्तेमाल किया है कि नहीं, क्योंकि ऐसे पेशेंट के लिए प्राइम दवा है चंपकादि अगर। हाँ सर, चंपकादि अगर स्टार्ट किया है सर। तो चंपकादि पिंपली ये पहले इनको इस्तेमाल करना है और पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट बहुत बढ़िया हम देखते हैं ना। तो उनको भी बताना है कि सर 50 जो भी आपको लग रहा है आपके मन में वो पेशेंट के सामने रखना है कि आप 10% इंप्रूव करोगे, ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो अच्छा होगा, राइट। कीप ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का ही पार्ट एक आता है। एंड अगेन एक अलग सा पार्ट ये भी है कि एज अ वैद्य आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसीलिए कि किसी भी पेशेंट के यश से और अपयश से एक वैद्य को कभी हिलना नहीं चाहिए। उसे केवल उसका धर्म करना चाहिए, उसे केवल उसका काम करना चाहिए, विच इज चिकित्सा करना। तो कई बार हम आते हैं, पेशेंट्स देखते हैं कि रात रात नहीं जागना, देयर सी व्हेन यू नो ऐसा किसी के साथ ना हो, बट व्हेन यू आर रियली स्ट्रेस ना, व्हेन यू आर रियली स्ट्रेस योर बॉडी बिहेव्स इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे। आपका बॉडी इतना डिफरेंटली बिहेव करता है ना कि आपको हर 2-2 मिनट में यूरिन आता है, आपको नींद नहीं आता, आपको भूख नहीं लग रही। और समझ जाना है कि किसी को भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही और पेट साफ नहीं हो रहा, मतलब ये पेशेंट ज्वर का ही है, मतलब ये पेशेंट चिंतनामच्या अतिचिंतनाक का ही है। तो हमें यहाँ पर क्लियर रखना है कि आप ये चीजें फॉलो करोगे, मिनिमम 10% आप ये करोगे। बट मेरे अनुभव में इसे बहुत पेशेंट मैंने किए और मेरा एवरेज सी मोर देन 1 इज ऑल्सो बहुत, ओके, मोर देन 1 इज ऑल्सो बहुत। तो ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 प्लस या 1 लाख प्लस, मोर देन 1 इज ऑल्सो बहुत। बहुत पेशेंट्स मैंने करने पे मुझे रिस्पॉन्स मिला है कि उनका 10% इंप्रूव हुआ है एंड दे हैव गॉट कंप्लीटली बेटर। आज ओवरऑल पेशेंट्स में कैसे रहता है ना, यू टेल देम 6 months और वो पहला मंथ फॉलो करते हैं, सेकंड मंथ सारा अपत्य होता है एंड 5th month दे टेल यू सर आपने कहा था 6 months। सो फॉर अ वैद्य इट बिकम्स वेरी वेरी नेगेटिव। सो पहली बात तो हमें आध्यात्मिक तरीके से इतना स्ट्रांग होना है कि कोई भी यश या अपयश से हमें हिलना नहीं, यश को सेलिब्रेट भी नहीं करना इतना ज्यादा और अपयश से ये भी नहीं होना। इफ यू एवर सीन द मूवी विच इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, जो मैं आज भी एटलीस्ट वंस अ मंथ देखता हूँ, विच इज अ पीसफुल वॉरियर। आई रियली एडवाइज दिस, अ पीसफुल वॉरियर। इफ यू कैन रियली हैंडल मोटिवेशन, अगर आप रियली रियलिटी और मोटिवेशन को हैंडल कर सकते हो, अ पीसफुल वॉरियर ये मूवी है। तो उसमें यही बताया कि कोई भी हैप्पी या सैड मोमेंट से हमें हिलना नहीं, वी जस्ट हैव टू डू आवर वर्क विच इज कंस्टेंटली कीप फेथ ऑन आयुर्वेद, मेक आवरसेल्फ बेटर एंड डू द बेस्ट। हमें पता है ना हमने बेस्ट किया है, हमें पता है कि हमने बेस्ट कन्वे किया है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। बट इंपॉर्टेंट ये कि आप क्लैरिटी रखो। चलो खुद को भी रात को सोते वक्त याद आना चाहिए, मैंने पेशेंट को कहा था कि मिनिमम 10% होगा और मैंने 20% किया, राइट। चिकनगुनिया जैसे तीव्र व्याधि में, अस्थिगत ज्वर में भी आपने इतना अच्छा चिकित्सा किया। ये पेशेंट को बताना है कि अगेन फॉर ऑल द पीपल दैट कम टू मी आई हैव दिस वन फंडा which is आयुर्वेद नहीं करोगे तो क्या, इसका मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आई गिव देम अ ग्लिम्स इफ यू डू नॉट डू आयुर्वेद और डू आयुर्वेद, हाउ इज इट गोना मेक अ डिफरेंस। सो मैंने देखे अस्थिगत ज्वर या चिकनगुनिया की जो पेन्स है ये सालों साल तक पेशेंट को रहते। चिकन पॉक्स की जो हिस्ट्री है ये सालों साल तक गर्भपात में कारणीभूत रहते, सालों साल का पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, रिकरेंट अबॉर्शन, मिसकैरेजेस का एक ही कारण है, बहुत बड़ा, एक ही नहीं बहुत बड़ा एक ही कारण,
मिसकैरेजेस का, रिकरेंट मिसकैरेजेस का, टॉर्च इन्फेक्शंस का, तो क्या है वो बचपन में हुआ चिकन पॉक्स, कांजिया गोबर, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स का हिस्ट्री हम देख रहे हैं। तो ये पेशेंट को क्लेरिफाई करना कि आप अगर आयुर्वेद नहीं ले रहे हो तो कि कहाँ पर लैंड कर रहे हो एंड हाउ आई कैन ऐड वैल्यू। इट्स ऑल अ गेम ऑफ एक्सचेंजिंग वैल्यूज। So this is the value that I bring on the table, which only I bring because I'm best at it, because मैंने बहुत patient किए, which is more than one. If you're a new practitioner, which I don't think so you are. Yes, sir. I have really started my practice. And sir, last question, can I? Please. Sir, like you told us, you should be transparent while negotiating with the patient. But I have a fear of losing that patient if I feel like that I should be transparent with. I should have that transparency in that negotiation. Transparency, my dear, transparency in those whom you innerly feel. You know, some people, you really feel that they're your family. You really feel that they're good, which is maximum. But अगर आपको पता है कि ये पेशेंट बहुत पीड़ा में, मतलब पीड़ा इज नॉट पीड़ा पे, पीड़ा is कि they've come with you with a negative impact. They've come with you with a negative approach on it. You know, जैसे मुझे नाम सिर्फ नहीं लेना, मुझे नेम नहीं लेना, बट अगेन वन ऑफ द एक्ट्रेसेस जिनका हर तीसरा फिल्म में वो है, उनके मदर मेरे पास एक बार आए थे और उनका यही फादर मेरे पास आए थे, वेयर आई फेल्ड एंड आई लर्न फ्रॉम माय फेलियर. तो आई रियली टॉक अबाउट फेलियर्स अ लॉट बिकॉज आई लर्न फ्रॉम इट. तो एवरी थर्ड मूवी में वो है, एवरी थर्ड मूवी जो लॉन्च हुई उसमें वो है. तो उनके फादर मेरे पास आए थे फॉर अ प्रोस्टेट प्रॉब्लम एंड ही वाज टेकिंग 2 मेडिसिन्स फॉर प्रोस्टेट, और मैंने उनको क्लेरिफाई करके बताया कि आपको एलोपैथी नहीं रोकना, अभी भी लेके आपको प्रॉब्लम है, वी विल डू सो एंड सो प्रोसेस, आप 15 डेज में उसमें इंप्रूवमेंट देखेंगे, देन वी विल टेपर. बट अगेन क्या हुआ कि 15 डेज में उन्होंने टेपर नहीं किया, उन्होंने बंदी कर दिया एलोपैथी. गॉट इट? सो अगेन ट्रांसपेरेंसी किन को देना, एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होता है, a category of patient that come with you with not just sadness. There are 2 kinds of sadness. One is the people who ask you for help. Those are the people you connect with, and those are the people जिनको आपको भी बहुत लगता है ना, मैं मेरा और 10 मिनट आपको रात को भी एक बार 10 मिनट रिमाइंडर दे दो, इतना आपको अच्छा फील होता है for these people. But there are some category of people जहां पर क्या होता है ना कि पेशेंट को इतनी पीड़ा रहती है, इतना पीड़ा इन सम केस ऑफ माइंड, जैसे आपने बताया ट्रांसपेरेंसी से वो पेशेंट लूज ना करे. तो वेयर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर का एक स्टेप आता है रेफरेंसेस एंड टेस्टिमोनियल्स. तो आप ट्रांसपेरेंसी उनको दो, बट ये भी रेफरेंसेस दो कि मेरे पास ऐसे भी पेशेंट जल्दी ठीक हुए आए हैं और उसके ये रिक्वायरमेंट्स. एंड ट्रांसपेरेंसी से पेशेंट लूज कैसे नहीं हुआ. लूज नहीं होने के 2-3 चीजें हैं, जैसे मैंने बताया, टेस्टिमोनियल्स, रेफरेंसेस, स्टोरीज, बिल्डिंग अप स्टोरीज जो आपके लाइफ में हुए हैं या आपके, इसलिए तो मैंने कहा कि आप इंटेंसिव ट्रेनिंग जो फर्स्ट ईयर से करना है तो उसमें आपको कुछ स्टोरीज मिलते हैं. यू कैन सी दैट स्टोरीज. आज भी मैं बोलता हूँ कि मेरे 8 साल के ऑब्जर्वेशन के स्टोरीज में आज भी मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि ये मैंने ऑब्जर्व किया था. राइट? सो स्टोरीज. अगला पार्ट क्या है कि आप उनको ये बता सकते हो कि ये चीजें अगर आप करोगे, ये चीजें का अगर पालन होता है तो फिर ठीक होगा. उस तरीके का एक ट्रांसपेरेंसी. यू विल नॉट लूज द पेशेंट, योर वर्ड्स हैव जेन्युइनिटी. इफ दैट इज सो, पीपल कनेक्ट. आज एक वैद्य या एक डॉक्टर पेशेंट्स कैसे चुनते हैं, ये आपको इफ यू कीप योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट एंड सी आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो वो एक ही पार्ट है, ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी. ट्रस्ट पे पेशेंट्स ट्रीटमेंट स्टार्ट करते. सो यू विल नॉट लूज द पेशेंट. इमेजिन योरसेल्फ एज अ पेशेंट एंड स्पीक with genuinity, so you will not lose at all, because आज एक डॉक्टर सिलेक्ट करने के लिए पेशेंट को कोई चीज लगता है तो वो एक ही है, ट्रस्ट. Thank you so much, sir. Thank you so much. एक हाथ कुछ क्वेश्चन होगा तो Okay. Hello, sir. Sir, one Hello, sir. question, please. Sir, how can we join internship under Jobis? ओके. तो वो एक नंबर है, मैं यहाँ चैट बॉक्स पे आई कैन पुट दैट नंबर. there's a waiting list of course, because again staff ही 80 लोगों का staff होता है. We practice in the midst of Mumbai. Dadar is a prime location in entire Mumbai. तो जहाँ जगह चलने की नहीं होती, we have 100 car parking and 80 people over here, lot of students of course. तो आप वो नंबर, आपका नाम, नंबर, डिटेल्स आप वहाँ पर देंगे. You are open to come anytime and learn, which many people do. So you are very open. मुझे जो भी है you can learn in that way. I'll share the number. If Aisha is there on the screen,
Are you there? Anyone from the team? So you can just drop your number. Yes, doctor. I'm updating right away, doctor. Just a second. Yeah, so she is very prompt, you know, very, very. She's always prompt. So she'll give you the number. आप वैसे कर सकते. Any more question? गुड इवनिंग सर. सर मेरा नाम प्रीतम है और मैं गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में भी एज अ हाउस स्टाफ में ज्वाइन किया है जस्ट रिसेंटली. तो रिसेंटली मैं और मेरे कलीग के बीच में कैसे इट वाज जस्ट गोइंग अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग मिथ्य रसायन्स. तो चरक हमारे जैसे आचार्य चरक ने कहा है कि जो श्रेष्ठ मिथ्य रसायन के हिसाब से हम शंख पुष्पी को यूज करते हैं. शंख पुष्पी को श्रेष्ठ बताया गया है. बट हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने ब्राह्मी को भी दिया था और ब्राह्मी को भी कहा सर ने कि उसको हम ऐसा मेधे रसायन दे सकते हैं. बट मेधे रसायन तो सर टेक्सचुअल रेफरेंसेस में मतलब पर्टिकुलरली चरक ने उस हिसाब से मेधे नहीं कहा है बट दूसरे रेफरेंसेस में है. तो सर अब मेरा ये क्वेश्चन था कि हम ये कैसे समझेंगे कि मतलब हर पेशेंट को अगर हम बेस्ट देना चाहें तो फिर उस हिसाब से तो फिर एक ही चीज सेट हो जा रहा है कि हम एक ही ड्रग हर पेशेंट को दे रहे हैं. तो फिर वो हम कैसे सेट करेंगे कि हाँ ये देना ही चाहिए या फिर इससे हट के हम सेकंड बेस्ट ड्रग दें या थर्ड बेस्ट ड्रग दें. Good question. Good question. तो ये हम डिसाइड कैसे करें? तो we can decide this with the characteristic features and the value that the herb offers. हर एक का एक गुण अलग है. जैसे हर एक का एक पार्ट अलग आता है. जैसे ब्राह्मी किस पे काम करेगा? तो ब्राह्मी इज शीत, नर्व टोनिफाई करता है, नर्व को बल देता है, नसों के ऊपर, मज्जा के ऊपर काम करता है और वो पेशेंट को कूल एंड कामनेस के लिए ब्राह्मी जाता है. ऑन दी अदर साइड शंख पुष्पी बुद्धिवर्धक है, तो बुद्धि को बढ़ाना है. जैसे कोई बच्चा है, आप उसको अगर शंख पुष्पी देते हो ऑटिज्म का, तो ऑटिज्म उसका और बढ़ेगा. पर अगर आप पेशेंट को ब्राह्मी दो, मंदुक पर्णी दो, तो उसका ऑटिज्म कम होगा. अगर आप एक ADHD वाले को शंख पुष्पी देते हो तो उसका ADHD और बढ़ेगा. पर आप उसको ब्राह्मी देते हो, संज्ञा स्थापन देते हो, तो वो कम होगा. आपको एक चीज समझनी है कि आई हैव दिस, मैं 2 पॉइंट्स यहाँ पर शेयर करूंगा. नंबर 1 इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, व्हिच इज herbs and formulations that have made the gun with respect to the memory intellect. Second, herbs that improve consciousness factor. हम बात कर रहे बड़ा नेटवर्क के कारण बात कर रहे. ऑटिज्म लोगों में क्या मिसिंग है? तो कॉन्शियसनेस फैक्टर मिसिंग है. फ्रंटल लोब में प्रेशर है, कॉन्शियसनेस फैक्टर इज मिसिंग. आज यूएस में सबसे ज्यादा पेशेंट्स कोई पाए जाते हैं ADHD के. मैं आपको एक एग्जांपल से रेफर कर रहा हूँ. फर्स्ट एग्जांपल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट. नंबर 1, इट इज ऐसे दवाई जिससे बुद्धि बढ़ रही है, इंटेलेक्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है, जैसे शंख पुष्पी. दूसरा है जैसे शंख पुष्पी, मेध्यवटी, ये सारी जो चीजें आती है. सेकेंड पार्ट ब्राह्मी जैसे दवा जिससे कॉन्शियसनेस पेशेंट का बढ़ रहा है. अगर आप संज्ञा स्थापन किसी पेशेंट को देते हो जो कि बहुत हाइपर एक्टिव है, तो उसमें कॉन्शियसनेस फैक्टर आता है, जागरूकता आती है. अगर आप उसको ज्योतिषमती जैसे मेध्य दवा दो तो वो तो और बढ़ेगा, राइट? काम. On the other side, my second point to you is very very important कि आप जो भी पेशेंट के लिए आप ये दवा इस्तेमाल करना चाहते हो, चाहे वो ऑटिज्म की हो, चाहे वो एक बच्चा हो जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू वांट टू डिसाइड कि मुझे शंख पुष्पी करना है या ब्राह्मी करना है, तो ऑलवेज टेक दैट पर्सन एंड डिवाइड हिज फीचर्स. आपको कौन से उद्देश्य से या कौन से लक्षण को उसकी ट्रीट करना है, डिवाइड दैट इनटू वात, पित्त एंड कफ. जैसे मेरे लिए उन्माद 3 प्रकार के, वातज, पित्तज और कफज. मेरे लिए वातज में कैसे होते हैं, कफज में कैसे होता है? पहले तो हमेशा बच्चे जब ओपीडी में आता है वो मुंडी नीचे डालता है और उसको कुछ भी नीचे डालता है, वो सुनता नहीं है, वो शांत रहता है. सेकेंड, वातज कैसे रहते हैं? जिनको जो बहुत भाग दौड़ करता रहता है, चिड़चिड़ करता रहता है, इधर उधर फेंकता है चीजें, बहुत एक्टिव रहता है, क्लैप करता है, किसी से तो बात करता है, ये वातज वाले हो गए. तो व्हाट इज दिस कि इनको अगर बोला शौर्य, शांत, तो वो थोड़ा सुनते हैं. 3 बार बोले तो 1 बार तो सुनते हैं. ये वात वाले हो गए. और पित्त वाले कैसे हो गए? तो यू टेल देम अ कमांड, यू टेल देम शौर्य नो, और शौर्य और मस्ती करेगा. यू टेल देम नो और वो और रिमोट को फेंकेगा, वो और चिल्लाएगा, वो और आवाज करेगा. तो ये पित्तज में आया. अब आपकी द्रव्य या आपका दवाई कौन से दोष पे जा रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू मेध्य, विथ रिस्पेक्ट टू इंप्रूविंग इंटेलिजेंट एंड इंप्रूविंग कॉन्शियसनेस, दोनों अलग है. तो
इसका एक डिफरेंशिएशन आपको करना है। आप द्रव्य को सिर्फ शंखपुष्पी और मेद्य न पढ़ के उसके डेप्थ में जाइए कि बटरफ्लाई पीस और क्या क्या चीजें होती है, उसका और डेप्थ पढ़िए, उसका और रेफरेंसेस पढ़िए कि इसका कहाँ पर रोल है। So you will get to know what I am exactly sharing it with you, which is herbs that actually improve consciousness factor। एक में जागरूकता बढ़ाने वाले द्रव्य है और एक में सिर्फ बुद्धि या सिर्फ जो कार्य है उसको बढ़ाने वाले क्या है गुण है। और सेकेंड पार्ट आया आपको जिस क्वालिटी, कौन से मेद्य की बहुत क्वालिटी आते हैं, सत्व रजोगुण की बहुत क्वालिटीज आते हैं, तो आपको सत्व रजोगुण तमो में कौन से लक्षणों को इंप्रूव करना है, इसको वात पित्त कफ के बॉक्सेस में डाल के आपके द्रव्य को चूज करके उसको इस्तेमाल। ओके, थैंक यू सर। जैसे एक पेशेंट अगर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो उसके कॉन्शियसनेस के लिए हम उसे शुरुआत में मकर ध्वज इस्तेमाल करें तो वो और बढ़ जाते हैं। बट इफ अ पेशेंट इज इफ अ चाइल्ड इज मॉडरेट इनफ, भागदौड़ है, चिड़चिड़ है, उसको हम मकर ध्वज देते हैं, उसका ऑटिज्म का पार्ट इंप्रूव होता है। उसको हम सारस्वत जैसे दवा देते हैं, इंप्रूव होता है। सारस्वत गिर्द देते हैं, इंप्रूव होता है। बट मेरे हिसाब से अगर आपको एक एडवाइस देना है मुझे, तो सबसे उत्तम अगर मेथी करने वाला कोई एक फॉर्मुलेशन है या योग है, तो ये अनुभूत योग का पार्ट आता है जो महाराज हमें बताते हैं, और वो है पिंपल पान विधि। दिस इज वेरी कॉमन एंड इजी, और जो आज भारत भर काफी लोग प्रॅक्टिस करते हैं। पिंपल पान विधि बोलते हैं, यानी पिंपळाच्या पानावर कशा पद्धतीने घी और राइस, दाल राइस लाके चूर्ण ऐड करके लेना है मिनिमम 5 रविवार को। और ये पिंपल पान विधि से हम देखते हैं उत्तम से भी उत्तम मेद्य कार्य होता है, जो अन्य किसी भी दवा से नहीं होता। ऐसे मैंने पर्सनली देखा है आयुर्वेद में, अन्य कोई दवा से इतना मेद्य कार्य नहीं हो रहा जितना पिंपल पान से होता है। यानी मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है एक दिन में 26-27 कन्वर्जन आने वाले भी 5 दिन कंटिन्यूस पिंपल पान करने से डायरेक्टली कम टू 4 and 5 कन्वर्जन। तो पिंपल पान एक बार और बता दें। पिंपल पान विधि का है, बहुत काफी लोगों को पता होगा नहीं होगा। पिंपला का पान ले रहे हैं, हमको पिपल का पत्ता लेना है, और इस पत्ते के ऊपर हमें क्या करना है, तो हमें एक मेद्य घी लगाना है। आप महाकल्याण करिए, सारस्वत करिए, ब्राह्मी करिए, आपकी युक्ति अनुसार। और सुबह 11 बजे के पहले 9-10 o'clock एक गरम गरम दाल राइस, यहाँ पर मम्मी को बोलना है बनाने के लिए, फादर को या कोई भी मेल को लीव प्रार्थना करके एक्सट्रैक्ट करना है, रखना है, घी लगाना है, दाल राइस रख के वहां पर मेद्य चूर्ण 1/2 to 1 teaspoon वहां पर स्प्रिंकल करना है। तो वो सारस्वत हो सकता है, शंखपुष्पी हो सकता है, आपकी युक्ति अनुसार, रोग अनुसार वहां पर चूर्ण करेंगे। ये एवरीडे कर सकते हैं या एवरी संडे को कर सकते हैं। तो मिनिमम 5 रविवार करने से हम देखते हैं द्रव्य से जो वेद्य कार्य नहीं हो रहा है, केवल और केवल पिंपल पान से होता है। ये मेरा अनुभव रहा। One more question is there. और एक क्वेश्चन लेके विल स्टार्ट है ना। ओके सर, सगळे असे म्हणतात की स्किझोफ्रेनिया डिसीज आपण आयुर्वेदने ट्रीट नाही करू शकत किंवा त्या लोकांना तसंच आयुष्यभर जगावं लागतं, तर आपण आयुर्वेदिकरित्या ते कसं ट्रीट करू शकतो किंवा काही चेंजेस आणू शकतो का अशा पेशंट्स मध्ये? खूप छान प्रश्न है, अपना लास्ट प्रश्न आजसाठी घेऊ। ओके सो शिजोफ्रेनिया के लक्षण हमें देखना है। शिजोफ्रेनिया का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ब्लेमिंग एटीट्यूड। दो चीजें देखते हैं हमेशा, ब्लेम, दे विल ऑलवेज ब्लेम, ब्लेमिंग एटीट्यूड रहता है फर्स्ट। और सेकंड पार्ट क्या रहता है इसमें कि पेशेंट को अगर टाइम में खाना नहीं मिले तो उसका जो सिम्टम्स है वो ये कई साइकेट्रिक केसेस में शुरू हो जाता है। शिजोफ्रेनिया के लक्षण है, आप म्यूट करिएगा, जिन्होंने म्यूट किया। तो ओवरऑल हमें देखना है कि पहले तो शिजोफ्रेनिया जो है ये मेडिसिन डिपेंडेंट है या मेडिसिन डिपेंडेंट नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू सी दिस। मेडिसिन डिपेंडेंट है तो क्या लक्षण है, मेडिसिन विड्रॉ करने पे क्या लक्षण है, या मेडिसिन नहीं है तो क्या लक्षण है। लक्षण अनुसार put the similar symptoms in the right boxes of Vat Pitta Kapha. You know, again, whether you want to practice in India, disorders internationally, I am of a firm belief, मैंने हमेशा Vat Pitta Kapha में मेरे choice of 10 herbs, 10 home remedies, 10 rasakalpas, 10 formulation, 10 single herbs, 10 पंचकर्म, 10 ऐसे 10 चीजें मैंने किए हुए हर रोग, हर Vat Pitta Kapha के लिए जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बने हुए हैं, राइट, which is very very open to anyone and everyone who's here to learn, right? और मुझे जब भी चांस मिले I keep it open for everyone. So similar मेरा एक एडवाइस क्या है यहाँ पर कि आपके अनुसार read and put them in the right boxes of Vat Pitta Kapha। देखिए वात के लक्षण क्या है और ये शिजोफ्रेनिया के क्या लक्षण आते हैं,
और उस अनुसार हम कौन से दवा वहां पर अप्लाई कर सकते हैं. एंड यू विल नॉट बिलीव दैट शिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स ट्रेमेंडसली इंप्रूव करते हैं. दीर्घकाल तक दवा लगती है. इट कैन बी अ टेपर्ड मेडिसिन, मुकरध्वज जैसे या स्वर्ण ब्राह्मी जैसे टेपर्ड डोज में दवा हम शुरू रख सकते हैं. बट नेवरदलेस जो केसेस, बिकॉज शिजोफ्रेनिया इज अ डिटोरिएटिंग कंडीशन, रिमेंबर दैट. शिजोफ्रेनिया के केसेस कोई आप ऐसे नहीं देखोगे कि पेशेंट स्टेबल है वैसे का वैसे, वो डिटोरिएटिंग केस है. वहां पर वी नीड देयर इज अ नीड ऑफ ट्रीटमेंट, वेदर इट इज साइकोथेरेपी, मॉडर्न थेरेपी, आयुर्वेद थेरेपी, सिद्ध मेडिसिन, दैव चिकित्सा हो, तो हर एक तरह का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वहां पर इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ये चीजें के अनुसार हमें दोष को राइट बॉक्स में ऐड करना है. वी नीड टू सिलेक्ट द ट्रीटमेंट एंड वी नीड टू ट्रीट सच पेशेंट्स. यहाँ पर एक कॉमन पार्ट विच वी डू फॉर शिजोफ्रेनिया और सच साइकेट्रिक कंडीशंस इज हम पेशेंट को वी टेल देम टू सिट डाउन, और यहाँ पर वी मेक अ ब्रिज ऑफ ब्राह्मी एंड आमलकी. वी मेक अ ब्रिज ऑफ ब्राह्मी आमलकी, और वहां पर हम तक्र मुस्ता आमलकी जटामांसी का एक तक्र बनाते हैं, सिद्ध किया हुआ तक्र बनाते हैं, और वहां पर हम एक बस्ती, इसको हम शिरो पीछू बोल सकते हैं, इसको हम शिरो बस्ती बोल सकते हैं. इस तरीके का एक पार्ट हम पेशेंट्स के लिए करते हैं यहाँ पर. एंड फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ डूइंग दिस वी सी अ ट्रेमेंडस चेंज ऑफ तक्रधारा, of dipping a cotton in takra and putting it between the both the eyebrows while sleeping. 15 minutes के लिए अगर आप तक्र रखते हो तो उसका एक फायदा है. या आपको एक तक्र का पेचू या बस्ती अगर आप करते हैं तो पेशेंट्स को हम देखते हैं विदिन मिनिमल फ्यू सेशंस पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट्स आते हैं. वी सी ओवरऑल उनके थॉट प्रोसेस में, ब्लेमिंग एटीट्यूड में, हर एक एस्पेक्ट में वी सी गुड चेंजेस. इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, देयर इज नो वन मेडिसिन, बिकॉज उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है ऑफ द सिम्पटम्स. यू नीड टू पुट देम इन द राइट बॉक्सेस एंड राइट बॉक्स अनुसार सिलेक्ट द मेडिसिन एंड जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट. कॉमन पार्ट मैंने आपको बताया, नस्से का पार्ट एक आता है विद त्वचा. ओके सर. ओके. Okay, thank you so much, sir, for this insightful session. Thank you, doctor. Thank you, Thank you, sir. thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Wonderful session. Thank you. Thank you, sir. Thank you so I much, hope sir. Everyone found Thank this you, sir. informative.